السلام علیکم ناظرین، 4 TV خبرنامے میں آپ کا استقبال ہے۔ میں ہوں محمد حسام الدین متین۔ سب سے پہلے پیش ہیں ہیڈ لائنز۔ شہر میں پیٹرول پمپس پر عوام کا ہجوم، بعض مقامات پر نو اسٹاک کے بورڈ، کوئی قلت نہیں۔ حکومت کی وضاحت، زمینی حالات متضاد، ڈیلرز کے رویے سے پمپ مالکان پریشان، بے چینی کا ماحول۔ پینشن اور گوڈسے کو لے کر ریاستی وزراء اور بی جے پی ارکان کے درمیان اسمبلی میں نوک جھونک، بی جے پی کے 8 MPs اور 2 مرکزی وزراء پر تلنگانہ پر توجہ نہ دینے کا الزام۔ شہر کو آلودگی سے پاک رکھنے EV گاڑیوں کی پالیسی، سرکاری ملازمین میں الیکٹرک گاڑیوں کے استعمال کو فروغ دینے کے لیے اہم اجلاس، رعایت کا اعلان۔ اوورسیز اسکالرشپس کی نئی درخواستوں کی یکسوئی کے لیے فوری کمیٹی کی تشکیل عمل میں لائی جائے۔ بستی دواخانوں، صفائی، اسٹریٹ لائٹس، اقامتی اسکولز، شادی مبارک کے بشمول مختلف مسائل پر مجلسی ارکان نے حکومت کو دلائی توجہ۔ اور میٹرک فیل نخلی BDS ڈاکٹر گرفتار، 20 سال سے کلینک چلانے کا انکشاف، ملکاج گری SOT کی کارروائی۔ QMax بلڈرز اینڈ ڈیولپرز آپ کے لیے لائے ہیں 3 and 4 BHK کے لگژری ریزیڈینشیل فلیٹس پرائم لوکیشن پر ماڈرن ایمینٹیز کے ساتھ۔ ضیاء انکلیو، QMax سفائر، ساجد ریزیڈینسی، QMax مسعود، جاوید انکلیو، فاطمہ ریزیڈینسی، اقبال ریزیڈینسی، MK ٹاورز، پلاٹینا ریزیڈینشیل کمرشل، موسیٰ انکلیو، MSN ایزل ریزیڈینسی، سرین ہائٹس، دارالامن، دارالخیر، ڈیلائٹ سوٹ، اکبر انکلیو، 35% ڈاؤن پیمنٹ، بقایا 12 مہینے کی آسان اقساط پہ۔ QMax بلڈرز اینڈ ڈیولپرز، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ السلام علیکم، میں فضیل خان۔ آپ کا یقین اور ہماری محنت سے کامیابی کا سفر جاری ہے، اور اسی سفر کا نیا ایڈریس ہے عزیز گریس، درگاہ روڈ، شیخ پیٹ پر لوکیٹڈ ہے۔ یہاں آپ کو ملتی ہے بیوٹیفل ڈیزائن 3 and 4 BHK لگژری ریسیڈنسز اور لمیٹڈ ایڈیشن پینٹ ہاؤسز۔ ہائی ٹیک سٹی صرف 10 منٹ اور ORR صرف 5 منٹ۔ ہمارے اور بھی پروجیکٹس حیدرآباد کے پرائم لوکیشنز پر چل رہے ہیں، جیسے بنجارہ ہلز، ٹولی چوکی، مہدی پٹنم اور ملاپلی میں۔ صرف 40% ڈاؤن پیمنٹ دیجیے اور ریمیننگ 18 months ایزی انسٹالمنٹس، انٹرسٹ فری اور بینک لون کی فیسلٹی کے ساتھ۔ عزیز گریس بائی عزیز کنسٹرکشنز۔ اپنی سائٹ وزٹ آج ہی اسکیڈیول کرے، آپ کا نیا گھر آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ زندگی کے چھوٹے بڑے ہر لمحے کے لیے جوہری لے کر آیا ہے وہ گہنے جو صرف پہنے نہیں جاتے بلکہ یادوں میں بس جاتے ہیں۔ گولڈ کی بات ہو، ڈائمنڈ کا چارم یا پلاٹینم کی شائن، جوہری ہے ہر خواہش کا جواب۔ جوہری صرف ایک شو روم نہیں، ایک مثال ہے خوبصورتی کی، بھروسے کی اور آپ کی پسند کی۔ چاہے شادی ہو، مہندی کا دن ہو یا کسی خاص پل کا اظہار، جوہری کے بنا ہر کہانی ادھوری لگتی ہے۔ خوبصورت رشتوں کے لیے خوبصورت گہنے بائے جوہری، گولڈ، ڈائمنڈز اینڈ پلاٹینم، اپوزٹ انڈین بینک، جوہری روڈ، ٹورڈ 7 ٹومز، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ اور اب پیش ہیں خبریں تفصیل سے۔ سیکریٹریٹ میں سرکاری ملازمین میں الیکٹرک گاڑیوں کے استعمال کو فروغ دینے کے لیے اہم اجلاس ہوا اور گاڑیوں کا معائنہ کیا گیا۔ چیف سیکریٹری راما کرشنا راؤ، DGP شیودر ریڈی اور دیگر افسران نے EV گاڑیوں کا جائزہ لیا۔ وزیر پونم پربھاکر نے کہا کہ حکومت نے آلودگی کم کرنے کے لیے EV پالیسی نافذ کی ہے، جس کے تحت روڈ ٹیکس اور رجسٹریشن فیس میں مکمل چھوٹ دی جا رہی ہے۔ اس پالیسی کے بعد ریاست میں الیکٹرک گاڑیوں کا استعمال تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ حکومت نے سرکاری اداروں کو EV گاڑیاں خریدنے کی ہدایت دی ہے، جبکہ ملازمین کو 10 سے 20% تک رعایت بھی دی جا رہی ہے۔ مختلف کمپنیوں نے اس میں تعاون کا اظہار کیا ہے۔ چیف سیکریٹری نے کہا کہ شہر کو صاف اور آلودگی سے پاک بنانے کے لیے EV گاڑیوں کا فروغ ضروری ہے اور حکومت اس سمت میں ٹھوس اقدامات کر رہی ہے۔ ریاستی اسمبلی میں وزیر سیتاکا نے BJP لیڈر مہیشور ریڈی پر سخت تنقید کی۔
उन्होंने कहा कि बीजेपी ने गुज़िश्ता 10 वर्षों में माजूरों और बेवाओं की पेंशन नहीं बढ़ाई, जबकि किसानों के खिलाफ काले कवानीन को राहुल गांधी की जद्दोजहद के बाद वापस लेना पड़ा। सीताक्का ने इल्जाम लगाया कि बड़े सनतकारों ने लाखों करोड़ के कर्ज माफ किए गए, लेकिन किसानों को राहत नहीं दी गई। उन्होंने कहा कि हुकूमत अवामी फलाह के लिए बड़े पैमाने पर खर्च कर रही है। 6 जमानतें नाफिज की जा रही हैं और खवातीन और किसानों के लिए मुख्तलिफ स्कीमें जारी हैं। उन्होंने बीजेपी पर वादा खिलाफी का इल्जाम लगाते हुए कहा कि अवाम को खोखली तकारीर से कोई फायदा नहीं होगा। तेलंगाना बीजेपी फ्लोर लीडर ई महेश्वर रेड्डी ने बजट पर मुबाहिस पर हिस्सा लेते हुए कांग्रेस हुकूमत के बजट को धोखा करार देते हुए शदीद तनकीद की। उन्होंने कहा कि बजट सिर्फ कागज तक महदूद है और अखराजात भी मुकम्मल तौर पर नहीं हो रहे हैं, जबकि रियासत की माली हालत कमज़ोर हो चुकी है और कर्जों पर इन्हिसार बढ़ गया है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि किसानों, खवातीन और फलाही स्कीमों के लिए मुनासिब फंड्स मख्तस नहीं किए गए हैं और कई वादे पूरे नहीं हुए। इस पर वजीर सीताक्का ने जवाब देते हुए कहा कि ज़रूरी मसाइल के लिए मरकजी हुकूमत जिम्मेदार है और बीजेपी को इस पर बात करने का हक नहीं है। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने अब तक खवातीन को बड़े पैमाने पर कर्जे फराहम किए हैं। वक्फे सवालात में जवाब देते हुए वजीर कोमटी रेड्डी ने कहा कि हैदराबाद में एलबी नगर से हयात नगर तक एलिवेटेड कॉरिडोर की तामीर पर पेशरफ्त जारी है। वजीर कोमटी रेड्डी वेंकट रेड्डी ने कहा कि इस मंसूबे को मरकजी सालाना मंसूबे में शामिल करने के बाद डीपीआर तैयार की जाएगी। उन्होंने बताया कि हैदराबाद विजयवाड़ा कौमी शाहरा पर शदीद ट्रैफिक के पेश नज़र ये मंसूबा अहम है। अरकान असम्बली ने भी इस रूट पर फ्लाई ओवर और फुट ओवर ब्रिजेस की ज़रूरत पर जोर दिया। वजीर ने कहा कि शहर में ट्रैफिक कम करने के लिए जामे मनसूबाबंदी की जा रही है, जबकि विजयवाड़ा तक सफ़र को तेज़ बनाने के लिए डबल स्टिकर रोड की मंजूरी भी हासिल की गई है। असेंबली में वजीर वी श्रीहरि ने बीजेपी एमएलएस को सख्त जवाब देते हुए कहा कि गैर ज़रूरी हंगामा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि वो खुद भी हिंदू हैं और रोज़ाना मजहबी इबादत करते हैं। दुनिया भर के ममालिक महात्मा गांधी को खिराज अक़ीदत पेश करते हैं। ऐसे अजीम रहनुमा के कातिल नाथूराम गोडसे की तारीफ करना काबिल कबूल नहीं। उन्होंने सवाल किया कि क्या बीजेपी कायदीन में इतनी हिम्मत है कि वो साफ तौर पर कहें कि गांधी जी का कत्ल गलत था, और उन्होंने कहा कि भारत में हर शख्स को अपने मजहब पर अमल करने की आज़ादी है, मगर दूसरों के मज़ाहिब का एहतराम भी ज़रूरी है। वज़ीर ने मज़ीद कहा कि अपने मज़हब की हिफाजत करते हुए दीगर मज़ाहिब का एहतराम करना चाहिए और वो हिंदू के तौर पर पैदा हुए हैं और हिंदू के तौर पर ही वफ़ात पाएंगे। बीआरएस लीडर केटी रामाराव ने आज ऐवान असम्बली में ओवरसीज़ स्कॉलरशिप्स की अदम अदायगी से तलबा को पेश आ रही मुश्किलात का हवाला दिया। केटीआर ने कहा कि गुज़िश्ता साल के बजट में फंड्स की फराहमी का दावा किया गया था, लेकिन अभी तक स्कॉलरशिप्स की रकूमात जारी नहीं की गईं। केटीआर ने कहा कि बीआरएस के दौरे हुकूमत में 7,000 तलबा को स्कॉलरशिप्स की रकूमात अदा की गई थी। आज तकरीबन 2,500 तलबा सेमेस्टर की फ़ीस अदा न होने से परेशान हैं। हुकूमत को ग्रीन चैनल के ज़रिए फौरी फ़ीस की रकम जारी करना चाहिए। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकन असम्बली जाफ़र हुसैन मेराज ने ओवरसीज़ स्कॉलरशिप्स की नई दरख्वास्तों की यकसुई के लिए फौरी कमेटी की तश्कील पर जोर दिया है। रुकन असम्बली ने कहा कि ओवरसीज़ स्कॉलरशिप्स के बकायाजात अदा न होने से तलबा परेशान हैं। नई दरख्वास्तों की भी यकसुई नहीं की गई है। कमेटी की अदम तश्कील से नई दरख्वास्तें ज़ेर इल्तिवा हैं, फौरी इसकी यकसुई की जाए। ऑनरेबल स्पीकर सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज जो माइनॉरिटी स्कॉलरशिप का जो क्वेश्चन है, जिसमें हुकूमत ने सीधा कहा कि टोटल 4,944 एप्लीकेशन है, जिसमें रिलीज कर दिए 520 एप्लीकेशन पेंडिंग है, जिसका अमाउंट सो एंड सो है बल्कि बताए सर। ठीक है सर, बहुत अच्छी बात है, रिलीज कर दिया। तो मेरा आपसे ये सवाल है कि SC ST BC को देना जरूरी है सर, उसके साथ साथ माइनॉरिटीज के कितने पेंडिंग है, आप उन लोगों को एक तो रिलीज करना है, और दूसरी चीज सर अहम बात यह है कि आप ओवरसीज स्कॉलरशिप के लिए आप लोगों को कंसिडर जरूर कर रहे हैं। जो नए एप्लीकेशन आके काफी जमाने से पेंडिंग है सर, आज वो एप्लीकेशन का क्या कर रहे हैं? अभी तक कोई कमेटी एग्जीक्यूट नहीं हुई सर। अगर कमेटी एग्जीक्यूट होंगी तो उसको स्क्रूटनी करके आप उन लोगों को सेलेक्ट कर सकते हैं। आज बच्चे इंतजार कर रहे हैं सर, साल उनके चले जा रहा सर। हमारी आपके जरिए से हुकूमत से, खासतौर से CM साहब बैठे हैं, मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है, इमीडिएट कमेटी डालिए सर। कमेटी डाल के नए एप्लीकेशन को क्लियर करिए ताकि ये बच्चे जाके बाहर तालीम हासिल कर सकते। बहुत बहुत शुक्रिया।
मजलिस के रुकन असम्बली माजिद हुसैन ने बजट मुबाहिस में हिस्सा लेते हुए मुख्तलिफ मसाइल पर हुकूमत को तवज्जो दिलाई। उन्होंने बताया कि शादी मुबारक स्कीम के तहत रुक़ूमात की जुराई में ताख़ीर की जा रही है। अक़लियती अक़ामती स्कूल्स में अमले की कमी है। 1,20,000 से ज़्यादा नशिस्तें पाई जाती हैं, लेकिन सिर्फ 80,000 दाखिले हुए हैं। इसकी वजूहात का पता चला कर दाखिलों के अमल में बेहतरी लाई जाए। रुकन असम्बली ने हज हाउस से मुत्तसिल इमारत की अरसे से ज़ेर इल्तिवा तामीर पर भी फ़िक्रमंदी का इजहार किया। शहर में स्ट्रीट लाइट्स की कमी, सफाई के नाक़िस इंतज़ामात और मच्छरों की कसरत पर भी उन्होंने तवज्जो दिलाई और हुकूमत से मौसर इक़दामात पर जोर दिया। सब शादी मुबारक जो स्कीम थी सब आपके पास ऑन रिकॉर्ड है साहब कि इसके ऊपर जनाब अकबरुद्दीन अवीसी साहब फ्लो लीडर AIMM ने यहां पर ठहर कर नुमाइंदगी की, रिप्रेजेंटेशन किया और ताकत से तरीके से अपनी बात रखते हुए इसको ग्रीन चैनल में लाया गया ताकि वो जो गरीब लोग जो अपने बेटियों की शादी करते हैं उनको फौरी तौर पर बगैर कोई तकलीफात के पैसे उनको मिल सके। सर हो रहा यह है कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट को इसकी जिम्मेदारी दी गई है और रेवेन्यू डिपार्टमेंट का पहले से बहुत सारी जिम्मेदारी है, बहुत सारे उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज है और उनके ऊपर शादी मुबारक के ताल्लुक से कोई टाइम बॉन्ड फिक्स नहीं किया गया है, जिसके लिए जो गरीब लोग कहीं ना कहीं से पैसे लेकर, कर्जा लेकर ये उम्मीद से करते हैं कि हुकूमत की जानिब से हमें शादी मुबारक के पैसे जल्दी मिल जाएंगे, उनको ताखीर हो रही है और उनको तकलीफ हो रही है। तो इसमें हमें टाइम बॉन्ड भी करना पड़ेगा रेवेन्यू डिपार्टमेंट को, उनके वेरिफिकेशन और प्रोसेसिंग डिलेस को खत्म करने के लिए। करीबन तेलंगाना उर्दू एकेडमी कंप्यूटर कम लाइब्रेरी एम्प्लॉइज करीबन 129 एम्प्लॉइज की 5 महीने से तनख्वाहें रोकी हुई है। रमजान गुजर गया, ईद गुजर गया, सोचिए सर अगर कोई एम्प्लॉय है और उसकी अगर तनख्वाह रोकी जाती है तो ईद में क्या खरीदारी होगी, कि कैसे वो अपने नीड्स को पूरा करेंगे। माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है सब, माइनॉरिटी लोग काम कर सकते हैं और माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन माइनॉरिटी एम्प्लॉइज को उनकी तनख्वाह देने में नाकामयाब हो गया सब। 130 एम्प्लॉइज, इनके भी सैलरीज इमीडिएटली तौर पर क्लियर करने की हम दरखास्त करते हैं साहब। दैरुतुल मारिफ के 17 एम्प्लॉइज है साहब, 400 साल पुराना इंस्टीट्यूट है साहब, इनके भी पिछले 6 महीने के सैलरीज रुके हुए हैं साहब। ये माइनॉरिटी एम्प्लॉइज है साहब, इनके तकाजे और इनकी मेहनताना तो हमें फौरी तौर पर देना चाहिए। 6 महीने, 3 महीने, 1 महीने की सैलरी अगर कोई गरीब को ना मिले तो वह परेशानी में आ जाता है। या 5-5, 6 महीनों की सैलरियां रुके हुए सर। BRS के रुकन असम्बली सुधीर रेड्डी ने ट्रैफिक मसाइल की यकसुई के लिए हुकूमत से जुरातमंदाना इक़दामात का मुतालबा किया है। असेंबली में सुधीर रेड्डी ने कहा कि कई मुकामात पर सड़कों पर मंदिर, मसाजिद, गिरजाघर और दूसरे मजहबी मुकामात मौजूद हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक के मसाइल पैदा हो रहे हैं। अगर इन मजहबी मुकामात को हटाकर दूसरी जगह आराजी फराहम की जाए तो ट्रैफिक के मसाइल की यकसुई हो जाएगी। जगतियाल में कांग्रेस के सीनियर लीडर जीवन रेड्डी की रिहाइशगाह पर अहम मुलाकात हुई। TPCC सदर महेश कुमार गौड़, AICC सेक्रेटरी सचिन सावंत और विप आदि श्रीनिवास ने उनसे मुलाकात की। महेश कुमार गौड़ ने कहा कि जीवन रेड्डी का कांग्रेस पार्टी से तवील ताल्लुक है और वो पार्टी में ही बरकरार हैं, यही हमारी ख्वाहिश है। उन्होंने कहा कि वो पार्टी में ही बरकरार रहें, यही हमारी ख्वाहिश है। उन्होंने तस्लीम किया कि कुछ हालात में पार्टी फैसलों से जीवन रेड्डी को मुश्किलात पेश आईं। कांग्रेस क़यादत ने जीवन रेड्डी से पार्टी न छोड़ने की अपील की है और उम्मीद जाहिर की कि वो इस्तीफा नहीं देंगे। पार्टी के अंदरूनी हालात के पेश नज़र इस मुलाकात को अहम माना जा रहा है। शहर में पेट्रोल पंप्स और CNG गैस पंप्स पर ख़तारें देखी जा रही हैं। हुकूमत और पुलिस कमिश्नर की तरफ से बयान जारी करते हुए कहा गया कि अफरा तफरी और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। पेट्रोल और गैस की किसी भी तरह की कोई किल्लत नहीं है। शहर के नवाही इलाकों में कई पेट्रोल पंप्स पर नो स्टॉक के पोस्टर्स देखे गए हैं। उपल, मल्लापुर, कटकेसर और अत्तापुर में ये पोस्टर्स नजर आए हैं। पंप मालिकान का कहना है कि कंपनियों को पेशगी रकम देने के बावजूद भी पंप्स पर पेट्रोल और डीजल नहीं फराहम किया जा रहा है, जिसकी वजह से कई पेट्रोल पंप्स बंद हैं। जिन इलाकों में पेट्रोल पंप्स खुले थे वहां पर आवाम का हुजूम देखा गया।
पेट्रोल की किल्लत को लेकर कयास आरइयों का बाजार गर्म है। हुकूमत की तरफ से किल्लत न होने के दावे इसलिए भी मज़हक़ ख़ेज़ नज़र आते हैं क्योंकि ज़मीनी सतह पर कई पेट्रोल पंप्स पर स्टॉक ही नहीं है। इस बारे में हुकूमत की तरफ से कोई वजाहत नहीं की जा रही है। दूसरी तरफ सीएनजी गैस पंप्स के पास ऑटोज़ की तवील कतारें देखी गई हैं। बताया जा रहा है कि गुज़िश्ता रात से ऑटो ड्राइवर्स अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। माजूर अफराद के साथ असेंबली की तरफ रैली निकालते हुए बीजेपी एमएलए पायल शंकर ने कांग्रेस हुकूमत से मुतालबा किया कि वो इंतखाबी मंशूर में माजूरों को दी गई यकीन दहानियों को पूरा करें। कंट्रोल रूम सिग्नल के मकाम पर पुलिस ने रैली को रोक दिया। उन्होंने मुतालबा किया कि 2016 के माजूर अफराद के हुकूक के कानून को मुकम्मल तौर पर नाफिज किया जाए और मुस्तहिक माजूर अफराद को मुलाजमतें और मकानात फराहम किए जाएं। बीआरएसवी के कारकुनान असेंबली गेट के सामने लगे बैरिकेड पर चढ़ गए। असेंबली का घेराव की कोशिश की। कुछ देर के लिए पुलिस को मुश्किल सूरत हाल का सामना करना पड़ा। तुलबा ने नारे लगाते हुए मुतालबा किया कि फीस रिएम्बर्समेंट फौरी तौर पर अदा की जाए। बाद में पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। गन पार्क के करीब बीआरएस के एमएलएज और एमएलसीज ने गैस सिलेंडरों के प्ले कार्ड्स के साथ एहतजाज किया। बीआरएस के वर्किंग सदर केटीआर ने कहा कि जंग के बाद एलपीजी की किल्लत से अवाम को शदीद मुश्किलात का सामना है, जबकि मरकज़ इस कमी से इनकार कर रहा है। उन्होंने कहा कि ज़मीनी सतह पर गैस की किल्लत वाज़ेह है, मगर मरकज़ और रियासत एक दूसरे पर जिम्मेदारी डाल रहे हैं। आम लोगों को इस सूरत हाल में मुश्किलात झेलनी पड़ रही हैं। उन्होंने मुतालबा किया कि मरकज़ी हुकूमत फौरी इक़दामात करे और गैस की फराहमी को यकीनी बनाए ताकि अवाम को मज़ीद परेशानी न हो। शहर के मुख्तलिफ मकामात पर मंगल की शाम तेज़ हवाओं, ज़ालाबारी और गरज चमक के साथ बारिश हुई। बचोपल्ली, मियाँपुर, माधापुर, कोंडापुर, कुतुबुल्लाहपुर, बालानगर, कोकटपल्ली, अलवाल, हाईटेक सिटी, खैरताबाद, सिकंदराबाद, बेगमपेट, मेहदीपट्टनम, मासाब टैंक, टोली चौकी, नामपल्ली, शेखपेट, राजेंद्र नगर, अत्तापुर, चार मीनार, गुलजार हाउस, याकूतपुरा और दूसरे इलाकों से भी ज़ालाबारी के साथ बारिश की तल्ला है। महकमे मौसमियात ने बताया कि रात के औकात में भी कहीं हल्की तो कहीं तेज़ बारिश हो सकती है। अचानक तेज़ बारिश की वजह से शहर के बाज़ इलाकों में मामूली तौर पर दर्जे हरारत में आर्जी कमी देखी गई। मलकाजगिरी एसओटी ने 20 साल से दांतों का मुबैना इलाज कर रहे फर्जी डॉक्टर को गिरफ्तार किया है। तफसीलात के मुताबिक उत्तर प्रदेश का साकिन रमेश, जो 10वीं जमात ही कामयाब था, बीडीएस के फर्जी सर्टिफिकेट की मदद से नरेडमेट में क्लिनिक चला रहा था। मुसद्दक़ा इत्तला मिलने पर एसओटी ने क्लिनिक पर धावा करते हुए रमेश को गिरफ्तार कर लिया। बताया जाता है कि रात के औकात में ही वो ऑपरेशंस किया करता था ताकि किसी की पूछताछ से बचा रहे। इस सिलसिले में पुलिस मजीद तहकीकात कर रही है। चंद्रायन गुट्टा पुलिस की तरफ से अदालत में पेश किए गए 4 मुलजिमीन को अदालत ने 4 दिन कैद की सजा सुनाई है। तफसीलात के मुताबिक शेख काशिम अली, शेख ताजुद्दीन, शेख रहमान और साई किरण को मुश्तबा हालत में घूमने के दौरान गिरफ्तार किया गया था। इन मुलजिमीन को नवे मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट नरसिंह राव ने 4 दिन की कैद की सजा सुनाई है। और आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK के लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। जिया एनक्लेव, क्यूमैक्स सफायर, साजिद रेजिडेंसी, क्यूमैक्स मसूद, जावेद एनक्लेव, फातिमा रेजिडेंसी, इकबाल रेजिडेंसी, इनकी टावर्स, प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, मूसा एनक्लेव, MSN एजल रेजिडेंसी, सरीन हाइट्स, दारुल अमान, दारुल खैर, डिलाइट सूट, अकबर एनक्लेव, 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अकसात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, मैं फुज़ैल खान। आपका यकीन और हमारी मेहनत से कामयाबी का सफ़र जारी है और इसी सफ़र का नया एड्रेस है अजीज़ ग्रेस। दरगाह रोड, शेखपेट पर लोकेटेड है। यहाँ आपको मिलती है ब्यूटीफुल डिज़ाइन 3 and 4 BHK लग्जरी रेसिडेंसेज और लिमिटेड एडिशन पेंट हाउसेज। हाईटेक सिटी सिर्फ 10 मिनट और ORR सिर्फ 5 मिनट। हमारे और भी प्रोजेक्ट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर चल रहे हैं, जैसे बंजारा हिल्स, टोली चौकी, मेहदीपट्टनम और मल्लापल्ली में। सिर्फ 40% डाउन पेमेंट दीजिए और रिमेनिंग 18 मंथ्स ईजी इंस्टॉलमेंट्स इंटरेस्ट फ्री।
اور بینک لون کی فیسلٹی کے ساتھ۔ عزیز گریس بائی عزیز کنسٹرکشنز، اپنی سائٹ وزٹ آج ہی اسکیڈیول کرے، آپ کا نیا گھر آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ زندگی کے چھوٹے بڑے ہر لمحے کے لیے جوہری لے کر آیا ہے وہ گہنے جو صرف پہنے نہیں جاتے بلکہ یادوں میں بس جاتے ہیں۔ گولڈ کی بات ہو، ڈائمنڈ کا چارم یا پلاٹینم کی شائن، جوہری ہے ہر خواہش کا جواب۔ جوہری صرف ایک شو روم نہیں، ایک مثال ہے خوبصورتی کی، بھروسے کی اور آپ کی پسند کی۔ چاہے شادی ہو، مہندی کا دن ہو یا کسی خاص پل کا اظہار، جوہری کے بنا ہر کہانی ادھوری لگتی ہے۔ خوبصورت رشتوں کے لیے خوبصورت گہنے بائے جوہری، گولڈ، ڈائمنڈز اینڈ پلاٹینم، اپوزٹ انڈین بینک، جوہری روڈ ٹورڈ 7 ٹومز، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ شہر میں پیٹرول پمپس پر عوام کا ہجوم، بعض مقامات پر نو اسٹاک کے بورڈ، کوئی قلت نہیں۔ حکومت کی وضاحت، زمینی حالات متضاد، ڈیلرز کے رویے سے پمپ مالکان پریشان، بے چینی کا ماحول۔ پینشن اور گوڈسے کو لے کر ریاستی وزراء اور بی جے پی ارکان کے درمیان اسمبلی میں نوک جھونک، بی جے پی کے 8 ایم پیز اور 2 مرکزی وزراء پر تلنگانہ پر توجہ نہ دینے کا الزام۔ شہر کو آلودگی سے پاک رکھنے ای وی گاڑیوں کی پالیسی، سرکاری ملازمین میں الیکٹرک گاڑیوں کے استعمال کو فروغ دینے کے لیے اہم اجلاس، رعایت کا اعلان۔ اوورسیز اسکالرشپس کی نئی درخواستوں کی یکسوئی کے لیے فوری کمیٹی کی تشکیل عمل میں لائی جائے۔ بستی دواخانوں، صفائی، اسٹریٹ لائٹس، اقامتی اسکولز، شادی مبارک کے بشمول مختلف مسائل پر مجلسی ارکان نے حکومت کو دلائی توجہ۔ اور میٹرک فیل نقلی بی ڈی ایس ڈاکٹر گرفتار، 20 سال سے کلینک چلانے کا انکشاف، ملکاجگیری ایس او ٹی کی کارروائی۔ ناظرین، اسی کے ساتھ 4 ٹی وی خبرنامے کا سلسلہ آج یہیں اختتام کو پہنچتا ہے۔ مجھے محمد اسلام الدین متین کو پوری ٹیم کے ساتھ دیں اجازت۔ دیکھتے رہیں 4 ٹی وی نیوز۔ خدا حافظ۔